Okay, good morning once again. I've started the recording. Fine. Raise hand करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? मैं पूरे नोट समझा दूंगा कोलिजन के स्टार्टिंग से एंड फिर जो नहीं पढ़ा है वो पार्ट कंटिन्यू करके क्वेश्चंस कराऊंगा आज। जल्दी रेज हैंड करो। हाँ प्रशांत, माइक ऑन कर लो बच्चे। यस सर। तो ये उस दिन मैंने समझा दिया था, नोट्स लिखे तो मैं दोबारा बस फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। कोलिजन स्टार्ट कर दें। दो पार्टिकल्स है U1 U2 से मूव कर दें बिफोर कोलिजन। U1 इज ग्रेटर देन U2 तो डेफिनेटली दे विल कोलाइड। कोलाइड करते टाइम सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कोलिजन फिगर आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ कोलिजन पे अलोंग द सरफेस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट बिकम्स कॉमन टेंजेंट। And once we know common tangent, then we draw perpendicular at the common tangent. Perpendicular to common tangent एक line draw करेंगे at the point of collision. That line is known as common normal or line of impact. क्या ये बात समझ में आई? Yes sir. And after collision, let's say they are moving with V1 and V2. So these are the important terms. Okay, इनको मैंने एक एक करके explain कर रखा है. Firstly, figure out point of collision. Secondly, draw a line along the surface at the point of collision. This line is known as common tangent. Third, line of impact or common normal is the line perpendicular to common tangent at the point of collision. तो वो figure out करो. Once you know all this, find forces along common normal. ठीक है? और line of impact. तो सबसे पहले force along common normal is normal reaction. This is normal reaction on 1 due to 2. Yes. And this is normal reaction on 2 due to 1. Right? Yes sir. So मैं देख सकता हूँ net external force on system No. along common normal is 0. 1 और 2 पे मिला के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. Yes sir. Right? For system N is internal force which cancels out. तो अगर F external 0 आ रहा है along common normal तो momentum conserve हो सकता है. Yes sir. Momentum conserve हो जाएगा. Momentum system along common normal is constant. ये inference निकला. Common tangent पे तो कोई force ही नहीं लग रहा यहाँ पे तो. So common tangent पे force नहीं लग रहा तो ये बता रखा है मैंने. अच्छा, उससे पहले एक और point. However, momentum of individual particle along common normal is not conserved. Common normal पे individual particle का momentum conserved नहीं है. As normal reaction is external force for individual particle. समझ में आई बात? Yes sir. तो common normal पे particle का conserved नहीं है but system का conserved है. Common tangent पे चढ़ते हैं तो common tangent पे क्या है? Force along common tangent during collision अगर मैं बात करूंगा तो force along common tangent is 0. Smooth surface है तो rough होगा तो क्या होगा वो बताऊंगा आपको. तो अगर 0 है तो as no force acts, hence momentum is Always conserved. तो momentum किसका? Momentum of system as well as momentum of particle. क्योंकि force particle के लिए भी नहीं है तो दोनों का momentum conserve है. Correct? Yes sir. यहाँ तक समझ में आया? तो सिस्टम का कंजर्व कर सकते हो, पार्टिकल का भी कंजर्व कर सकते हो. और पार्टिकल का कंजर्व करके एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है विच आई एम गोइंग टू यूज एक्सटेंसिवली. वो रिलेशन ये है, as particles momentum is constant along common tangent, it implies velocity of particle remains constant along common tangent. common tangent पे velocity भी constant रहेगा. ऐसा क्यों? because m1 u1 common tangent is equals to m1 v1 common tangent. पार्टिकल का कंजर्व किया तो Yes sir. और अगर पार्टिकल का कंजर्व किया तो m1 m1 कैंसिल होके u1 कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू v1 कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ से वेलोसिटी कंजर्व हो गया. Yes sir. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. अगर रफ सरफेस होता तो क्या होता प्रशांत? Friction. अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा. हाँ. तो फ्रिक्शन अगर इंपल्सिव है तो इट कैन चेंज मोमेंटम. करेक्ट? मैं Yes. डायरेक्शन नहीं बता सकता हूँ किस पे कौन सा होगा, इसलिए मैंने बस डिनोट कर दिया कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा. कौन सा वाला फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं पता. राइट? तो फोर्स अलोंग कॉमन टैंजेंट फ्रिक्शन होगा विच इज म्यू टाइम्स एन. फोर्स
नेट फोर्स ऑन सिस्टम अलोंग कॉमन टेंजेंट अभी भी 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैंसिल आउट होके इंटरनल फोर्स होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिस्टम का कॉमन टेंजेंट पे अभी भी कंजर्व रहेगा। पार्टिकल का अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0, तो पार्टिकल पे लग सकता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ये मैंने गलत लिखा था, इक्वल टू साइन लिख रखा था, तो मैंने हाईलाइट किया है चेंज ऑन पेज दिस, तो आप कॉपी करोगे तो दिख जाएगा। करेक्ट? यस। जो चीज अभी बोली थी वही, इफ देयर इज चेंज इन मोमेंटम अलोंग एनी एक्सिस या एनी डायरेक्शन, देन इट इज ड्यू टू ईदर इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स। वी नो इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आई क्या बात समझ में? यस सर। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या रहती है सिस्टम की? कंजर्व रहती है। क्यों रहती है वो मैंने बाद में समझाया है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। ये भी क्या होता है ये भी मैंने बाद में बताया। सेकंड टाइप, इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके? यस। और E की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर टू मूव विद कॉमन वेलोसिटी। ओके? यस सर। आफ्टर कोलिजन। तो ऐसे में क्या, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन मूविंग कार, ये एग्जांपल हो गया। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, इनफैक्ट इसमें जो लॉस होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो मैक्सिमम होता है। कई बार तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाता है। समटाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली लॉस्ट। इसका एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था, वही रिपीट कर रहा हूं। च्युइंगम खा के फेंका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाके चिपक जाएगा। यस सर। तो फाइनल तो 0 हो गया, इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर था, लॉस कितना हो गया, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, पूरा का पूरा लूज हो गया। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है पॉइंट? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ड्यूरिंग कोलिजन particles get deformed, particles gets आएगा या particles it's deformed. Okay, hence a part of kinetic energy is converted in potential energy. If particles are able to regain original shape and size after collision, then that potential energy again reconverts in kinetic energy, hence kinetic energy of system remains conserved. समझ में आई बात? हाँ यस सर। सर एक बार इसका एग्जांपल बता दो। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, राइट? इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देयर इज सम डिफॉर्मेशन, राइट? अब अगर आप मुझसे रियल लाइफ एग्जांपल पूछोगे तो मैं कहूंगा मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता ही नहीं है। बट स्नूकर टेबल पे जो कोलिजन होते हैं उसको हम मानते हैं कि चलो ये क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक है। समझ में आई बात? ओके यस राइट, है ना? तनिष आपने रेज हैंड किया। डिफॉर्म मतलब बेसिकली शेप चेंज हो जाना। डिफॉर्मेशन होना मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप चेंज कर दिया, फोर्स लगाया, तो कार का एक्सीडेंट होता है तो कार क्या होती है, टूट जाती है, डेंट आ जाता है, दैट डेंट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्म हो गया, जो उसका शेप था उससे चेंज होगा। लोअर योर हैंड तनिष। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेट करता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। कैसे रिलेट करता है? -v12 by u12। इट इज ओनली वैलिड अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। सिर्फ और सिर्फ कहां वैलिड है? लाइन ऑफ इंपैक्ट पर।
E की वैल्यू कितनी है? माइनस v1 बाई v2 अपॉन u1 बाई u2, राइट? तो Yes, sir. माइनस टाइम्स v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ओके। E कितना आएगा? v2 माइनस v1 अपॉन U1 minus U2. which is velocity of separation upon Velocity of approach. velocity of approach। आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ पे वैल्यूज विद साइन डालनी है, टेकिंग सम डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ओके। Yes, sir. वैल्यू ऑफ ई किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट मास एंड शेप। और ई की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है। फिर मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की कुछ एग्जांपल दिए थे। पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 हो गया, सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1। ई कितना आएगा? v2 माइनस v1 अपॉन U1 minus U2. राइट। Yes, sir. यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो अप्रोच कितना होगा? u1 प्लस u2, राइट। सेपरेशन अपोजिट जा रहे हैं तो v1 प्लस v2, तो ई ऐसे केस में क्या आएगा? v2 प्लस v1 अपॉन u1 प्लस u2। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पार्टिकल आया, कोलाइड करा, तो ये बन गया आपका कॉमन टेंजेंट, ये बन गया आपका कॉमन नॉर्मल। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u हो गया क्योंकि यही मूव कर रहा है केवल, राइट। और Yes, sir. कोलिजन के बाद मान लो ये ऊपर जा रहा है v1 से और ये इधर जा रहा है v2 से, तो उसका कंपोनेंट v2 sin थीटा आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? v1 प्लस v2 sin थीटा, राइट। Yes, sir. सेम चीज अगर अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे e की वैल्यू लिखी जा सकती है, e कितना आ जाएगा? v2 sin थीटा प्लस v1 अपॉन U. खाना खा लिया? u। साबुदाना। आकाश, माइक ऑन कर लिया आपने? ओके, Yes, sir. फाइन। नेक्स्ट, ये सिर्फ अप्रोच वाला है, तो पार्टिकल आया, कोलाइड किया ऐसे, राइट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो उसका कंपोनेंट कितना है? u1 sin थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ गया? u1 sin थीटा। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये नीचे u1 से मूव कर रहा है, ये राइट में u2 से कर रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आप कंपोनेंट निकालोगे तो u1 cos थीटा प्लस u2 sin थीटा आ जाएगा। ये मैं उस दिन सब पढ़ा चुका था। Yes, sir. टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, वन डायमेंशनल कोलिजन हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, टू डायमेंशनल कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, राइट। Yes, sir. इनको ऑब्लिक कोलिजन को और डिटेल में देखेंगे आज। अब ये वो पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर दो, कहां पे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट दोनों पर। तो यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कंजर्व करूंगा तो दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी मुझे निशांत? पार्टिकल का हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे तो नहीं कर सकते, बट पार्टिकल का हम कॉमन टेंजेंट पे कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन यहां से मिल जाएगी मुझे। ई की वैल्यू से थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। Yes. आई बात समझ में? Yes, sir. यहाँ पे भी मैंने एक चेंज किया है, यहाँ गलती से कॉमन नॉर्मल लिखा था, उसको कॉमन टेंजेंट किया है। दिस इज चेंज जो मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। ई की वैल्यूज वो पिछले इक्वेशन में यूज कर लेना। और चौथी इक्वेशन मिल सकती है अगर इलास्टिक कोलिजन हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, राइट। एंड आई मेड यू सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑन दिस। ये वो 3 क्वेश्चंस है जो मैंने नोट्स पे दोबारा लिख दिए, राइट। Yes, sir. अब मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, तो आज से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल केस क्या है? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए है। if colliding particles have equal masses, अगर masses equal होंगे, then after elastic collision they exchange their velocities। मतलब फर्स्ट पार्टिकल u1 से जा रहा है, सेकंड पार्टिकल u2 से जा रहा है, ओके। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? लेट्स से ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली v1 की वैल्यू u2 लिख सकता हूँ और v2 की वैल्यू u1 लिख सकता हूँ। एक्सचेंज हो जाती है वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे।
इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, लेट्स से ऑब्जेक्ट 2 स्टेशनरी है बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 रेस्ट पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 मूव कर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो जैसे मैं पूल टेबल की बात कर रहा था, 2 बॉल्स है, दोनों का वेट सेम है, तो पहली बॉल जाके दूसरी बॉल पे कोलाइड करी, इलास्टिक कोलिजन होगा तो पहली बॉल तो वहीं रुक जाएगी और दूसरी बॉल सेम वेलोसिटी से आगे चली जाएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. इसका प्रूफ बता देता हूं। E की वैल्यू अगर 1 है तो E क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। हेड ऑन है तो डायरेक्शन का सोचना ही नहीं है, तो U1 माइनस U2 किसके इक्वल आ गया, V2 माइनस V1 के इक्वल आ गया, रीअरेंज किया तो। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट M U1 प्लस M U2, मास सेम है, इज इक्वल टू M V1 प्लस M V2। M Yes. गेट्स कैंसिल तो U1 प्लस U2 इज V1 प्लस V2। Hmm. अब ये इक्वेशन 2 और 1 को अगर मैं ऐड करा दूं तो RHS में क्या बचेगा, RHS में 2V2 बचेगा, V1 हाँ. V1 कैंसिल हो गया, और LHS में क्या बचेगा, 2U1 बचेगा। तो 2V2 इज 2U1, तो V2 इक्वल टू U1 आ जाएगा। Yes, sir. और V2 अगर U1 के इक्वल आ गया तो इक्वेशन 2 में डालते ही V1 किसके इक्वल आ गया। V2. समझ में आई बात? Yes, sir. एक ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, दूसरा ये if one of the object is heavy massive, मैंने मान लिया let's say if object 2 is massive, then we can use approximation that m1 by m2 is approximately 0। ये किन केसेस में काम आएगा, मैंने बॉल को दीवार पे कोलाइड कराया, हाँ. तो उन केसेस में m1 by m2 को आप 0 ले सकते हो। या फिर मैंने बॉल को ग्राउंड पे छोड़ दिया, तो ग्राउंड पे हिट करेगा तो अर्थ का मास बॉल से बहुत बड़ा होता है, तो उसमें m1 by m2 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो, 0. समझ में आई बात? Yes, sir. चलो ऑब्लिक कोलिजन की बात करते हैं। ऑब्लिक कोलिजन क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल कोलिजन। अब उसको मैं समझा रहा हूं। पार्टिकल M2 θ2 एंगल पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ U2 वेलोसिटी से, पार्टिकल M1 θ1 एंगल पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ U1 वेलोसिटी से। दिस इज बिफोर कोलिजन की कंडीशन। ड्यूरिंग कोलिजन ये एक ऐसे पॉइंट पे कोलाइड करते हैं जहां पे नॉर्मल आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ये गिवन है, तो कॉमन टेंजेंट ऑटोमेटिकली आपका वाई एक्सिस बन जाएगा, Yes. राइट। स्मूथ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और लेट्स से अब हमें पता नहीं है बाद में क्या हो रहा है, तो मैंने मान लिया M2 अल्फा 2 एंगल पे जा रहा है हॉरिजॉन्टल से विद वेलोसिटी V2 एंड M1 अल्फा 1 एंगल पे जा रहा है विद V1 वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन। ओके, Yes, sir. अब इनको लेके सॉल्व करना है हमें चीजें। तो 4 वेरिएबल्स आ गए, V1 V2 अल्फा 1 अल्फा 2, राइट। Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट? तनिष आप बोलते सर स्लो जाओ, मैं स्लो चला जाऊंगा। वेरी गुड, आपने मुझे बोला। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लेना दोबारा। तनिष कुछ बोलना है? तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे जा रहे थे तनिष, ये कोलाइड करे और उसके बाद ऐसे जा रहे हैं। जब ये ऐसे जा रहे हैं तो हमें V1 V2 अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं पता। ओके, यस सर। कॉमन टेंजेंट हमें पता है और कॉमन नॉर्मल पता है, और हमारे दिमाग के जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रशांत माइक ऑन कर लो आप भी, हमें वो भी पता है, राइट। अब मैं उनको अप्लाई कराऊंगा, जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बोले थे उनको अप्लाई कराऊंगा। कैसे अप्लाई कराऊंगा देखते जाना। सबसे पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, एक्स एक्सिस है। कॉमन टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। प्रशांत कीप ऑन रिप्लाइंग, है ना। Yes, sir. अब अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। Yes, sir. तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल वेलोसिटीज लिख देता हूं बिफोर कोलिजन। क्या होगा, u1x u1 cos θ1 होगा यहां से, Yes, sir. है ना। और u2x कितना होगा, U2 cos θ2. आई बात समझ में? Yes. आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है बच्चे, ये होगा v1 cos अल्फा 1 और ये Yes. होगा v2 cos अल्फा 2। क्लियर है?
Yes, sir. अब along common tangent before डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो माइनस u1 sin θ1 and u2y minus u2 sin θ2. Yes, sir. u1 sin θ1, Hmm. u2 sin θ2. v1 sin alpha 1, v1 sin v2 sin alpha 2 and v1 sin alpha 1. आई क्या बात समझ में प्रशांत? Yes, sir. तो माइनस v1 sin alpha 1 माइनस v2 sin alpha 2. अब मुझे वेलोसिटीज पता है, Hmm. सारे वेरिएबल्स वगैरह लिख दिए, तो अब मैं सिर्फ दिमाग लगाऊंगा. दिमाग क्या? सिस्टम Momentum. का लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कंजर्व कर दो. m1 u1 cos θ1 प्लस m2 u2 cos θ2. ये सिस्टम का हो गया इनिशियल. लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे फाइनल कितना होगा? m1 v1 cos alpha 1 प्लस m2 v2 cos alpha 2. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ऑब्जेक्ट का क्या होगा? कांस्टेंट अलोंग कॉमन टेंजेंट. ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. Hmm. तो वही m1 u1 sin θ1 माइनस m1 v1 sin alpha 1 को इक्वेट किया तो u1 sin θ1 इक्वल्स टू v1 sin alpha 1 आ जाएगा. Yes, sir. यही ऑब्जेक्ट का कॉमन टेंजेंट पे ऑब्जेक्ट 2 का करूंगा तो माइनस m2 u2 sin θ2 माइनस m2 v2 sin alpha 2. अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा? u2 sin θ2 इज V2 sin alpha 2. आई बात समझ में? Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? Long. E along line of impact डिफाइन होता है Yes. v2x minus v1x upon u1x minus u2x. Hmm. v1x v2x कितना? v2 cos alpha 2 Yes, sir. minus v1 cos alpha 1 upon u1 cos θ1 Yes, minus sir. u2 cos θ2. आई बात समझ में? Yes, sir. इक्वेशंस 4 हो गई. Hmm. मेरे 4 अननोन थे v1 v2 alpha 1 alpha 2, राइट? Yes, sir. और e की वैल्यूज जो भी हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना. अब मेरे पास एक और इक्वेशन हो सकती है अगर मेरा इलास्टिक कोलिजन हो. अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकता हूं? कंजर्व कर सकता हूं सिस्टम की. तो इनिशियल होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं. प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. किसी बच्चे को कोई डाउट? सो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने बता दिया. सिद्धार्थ बोलो. सर सिस्टम का भी कॉमन टेंजेंट पे मोमेंटम फायदा कंजर्व क्या है? कर सकते हैं. फायदा क्या है? ऑब्जेक्ट का कंजर्व करके डायरेक्टिव वेलोसिटी आ गई ना. मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ तो मतलब हाँ, इसमें कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो. यस सर. करेक्ट. इसमें डायरेक्ट इजी पड़ रहा था इसलिए ये Right. करा दिया. स्मूथ है तो. करेक्ट 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 करेक्ट. ओके सर. अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे प्रशांत, प्रीवियस केस में तुम्हें पता था कि कॉमन नॉर्मल एक्स हॉरिजॉन्टल है, करेक्ट? हाँ. इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि कॉमन नॉर्मल कहां पर है, बट हमें क्या दे रखा है? बिफोर वाली कंडीशन दे रखी है. बिफोर वाली कंडीशन में क्या है? पार्टिकल 1 u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है टुवर्ड्स राइट, ऐसे. पार्टिकल 2 u2 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है टुवर्ड्स राइट, और दोनों के सेंटर के बीच में सेपरेशन कितना दे रखा है? d दे रखा है, करेक्ट? Yes. तो अब कुछ देर के बाद कोलाइड करेंगे, अज्यूमिंग u1 ग्रेटर देन u2. Yes, sir. तो ये कोलाइड करें. कोलाइड करने के बाद कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट हमें फिगर आउट करना होता है, उनका डायरेक्शन फिगर आउट करना होता है. हाँ. तो कॉमन नॉर्मल तो मैं डायरेक्टली फिगर आउट कर सकता हूं. कॉमन नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा Yes. टू कॉमन टेंजेंट. अब मुझे पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री. बाउंड्री पे जहां पे भी कोलाइड होगा वहां पे रेडियस, दोनों के रेडियस को ज्वाइन कर दूंगा तो कॉमन नॉर्मल बन जाएगा, ये रेड लाइन. Yes, sir.
और मुझे पता है सेपरेशन कितना था दोनों के बीच में, d, तो D, ये डिस्टेंस भी d आ जाएगा, करेक्ट। yes, हाँ, तो यहाँ पे एक छोटू ट्रायंगल बना दिया अलग से, ये आ गया r1 प्लस r2, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। हाँ, और यहाँ से सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस था O2 से लेके ये डिस्टेंस कितना था, d, ये लिख D, दिया। ये लिखने के बाद ये जो रेड वाली कॉमन नॉर्मल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी ये भी निकाल सकते हैं, थीटा एंगल बनाएगी। कैसे? ये ट्रायंगल की हेल्प से। yes sir, जहां पे मैं ट्रायंगल की हेल्प से साइन थीटा निकाल सकता हूँ, साइन थीटा होगा d अपॉन r1 प्लस r2। समझ में आई बात? yes sir, तो मुझे डायरेक्शन मिल गया कॉमन नॉर्मल का। कॉमन नॉर्मल क्या होगी थ्योरेटिकली पता था, बट उसका डायरेक्शन नहीं पता था, अब डायरेक्शन भी पता है। डायरेक्शन क्या? इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द D, हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। yes जहां sir, पे साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है d बाय r1 प्लस r2 है। इज दिस क्लियर टू यू? yes sir, तो ये अगर पता पड़ गया तो काम बहुत सिंपल है। अब मुझे वही निकालना है, पार्टिकल की वेलोसिटी और वो सारी चीजें। तो मैंने मान लिया v1t एंड v2t बी द वेलोसिटीज ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली along common tangent after collision। कोलिजन के बाद v1t और v2t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? yes or no? am I audible to you? yes sir, yes, मैंने मान लिया v1t v2t क्या है? पार्टिकल्स की कॉमन टेंजेंट पे वेलोसिटी है। तो डायरेक्टली v1t की वैल्यू क्या होगी? कॉमन टेंजेंट पे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रहती है, तो u1 sin थीटा के इक्वल होगी, और v2t u2 sin थीटा के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग कॉमन टेंजेंट इज सेम, yes, और कॉमन टेंजेंट में कितनी वेलोसिटी है? अगर ये u1 दे रखा है तो इधर कितना आएगा? u1 sin थीटा आएगा, क्योंकि थीटा एंगल पर है कॉमन सॉरी, हाँ कॉमन नॉर्मल, करेक्ट। yes sir, और अगर ऐसे ही ये u2 दे रखा है और ये एंगल थीटा है कॉमन नॉर्मल का, तो कॉमन टेंजेंट पे कितना आएगा कंपोनेंट? u2 sin थीटा। yes, तो डायरेक्टली v1t की वैल्यू मिल गई, v2t की वैल्यू मिल गई। yes sir, अभी नॉर्मल में निकालना है तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने v1n एंड v2n मान लिया क्या? velocity, वेलोसिटी ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली अलोंग common normal, कॉमन नॉर्मल आफ्टर कोलिजन। yes sir, क्योंकि कॉमन नॉर्मल में मैं पार्टिकल्स का नहीं सिस्टम का कंजर्व कर सकता हूँ, तो सिस्टम का कंजर्व किया m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos थीटा इज m1 v1n प्लस m2 v2n, yes sir, राइट। हम्म, E की वैल्यू कितनी आ गई? v2n माइनस v1n अपॉन u1 cos थीटा माइनस u2 cos थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गई। हाँ, तो दो इक्वेशन, दो अननोन 3 एंड 4 से आपको v1n v2n मिल जाएगा। हाँ सर, समझ गए, So solving we can get the desired variables। आई बात समझ में? yes sir, तो अब इनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सामने आपके एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। सिद्धार्थ बोलो। सर पहले हम लोग ने जब देखा था मतलब ये ऑब्लिक्यू, तो फिर वो एक्स एंड वाई एक्सेस पे पहले से दिया था, करेक्ट, प्रीवियस केस में। और इसमें नहीं दिया था। इसमें नहीं दिया था तो इसमें फिगर आउट करना पड़ा। ओके सर। करो कैलकुलेट।
सही है। प्रशांत। वरुण, यू की वैल्यू गलत है। टू जीरो वन इज करेक्ट। यू की वैल्यू लास्ट 1 मिनट। अप्रोक्सीमेटली 201 के नियर अबाउट 200 भी आ रहा है तो चलेगा। ठीक है, आई एम वेटिंग। 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवान, वरुण सॉरी।
एम्बेड हुआ है तो रुका थोड़ी है वरुण। चलो वरुण माइक ऑन करो, अपन करते हैं डिस्कस। प्रशांत लोअर योर हैंड। यस सर। देखो 3 कंडीशन है, बिफोर ऐसा है, ये रेस्ट पर है, यस सर। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये अटक जाएगा, अटकने के Yes, बाद sir. क्या वो वहीं पे रुक जाएगा या फिर दोनों साथ में मूव करेंगे? साथ में मूव करना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कैन नॉट बी 0। यस सर। तो आप जो कह रहे हो वो तो गलत ही हो गया कॉन्सेप्ट, हम्म। राइट। अब इसके बाद Yes, वेलोसिटी sir. है तो ये ऊपर स्विंग करेगा, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, और हाईएस्ट पॉइंट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं हाईएस्ट पॉइंट एंड आफ्टर कोलिजन में तो एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ, कोलिजन होने के बाद क्या हो रहा है, जो 2 कंडीशन है वहां पे एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। सिद्धार्थ बोलो। सर ये हाईएस्ट पॉइंट कैसे? लिखा है ना, रेजेज इट बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी भी तो हो सकती है सर, उधर दिया तो नहीं है ना कि हाँ, तो दिया नहीं है highest- तो खुद सोच के 5 सेंटीमीटर दिया होगा ना, ऐसे 1 भी लिख देते, 2 भी लिख देते, 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 5 ही जाएगा। ठीक है वरुण, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, एनर्जी कंजर्व कर पा रहा हूँ, कहाँ पर? आफ्टर कोलिजन के 2 इंस्टेंसेस पे, राइट। यस सर। एनर्जी कंजर्व किया तो क्या होगा, काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल। पोटेंशियल फाइनल, यस सर। masses will get cancelled, I'm left with is v is equals to, ड्यू टू यस। करेक्ट। यस अब सर। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो mu बिफोर था स्मॉल m प्लस कैपिटल M, v आफ्टर था, v की वैल्यू डाल दी √2gh। इसको सॉल्व कर लिया, स्मॉल m पता है, कैपिटल M पता है, सॉल्व करूंगा तो u आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 201 आ रहा है। फाइनल थर्मल एनर्जी कैसे आएगा? थर्मल एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस्ट कितना होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल का मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा आंसर। 202। हाँ यस सर, समझ गया। समझा? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। बच्चों मेरा टैब डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।
हाँ बच्चों, कनेक्ट हो गया है। करो सॉल्व। Initially wedges at rest, Siddharth. नहीं विवान, ये गलत है। रेशियो बच्चे बिफोर एंड आफ्टर का निकालना है। बिफोर का रेशियो और आफ्टर का रेशियो नहीं निकालना है। मजे ले रहे हो क्या आप? तो बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड v1/v2 निकाल दो आप, ये पूछा गया है।
आप V1 एंड V2 निकाल दो यार, उसके बाद हो जाएगा आपका। डोंट गेट कंफ्यूज, V1 V2 निकाल दो। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सिद्धार्थ। यस सर। ये पार्टिकल है, ऐसे कोलाइड sir. करेगा यस तो सर। यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ। अब इसमें ग्राउंड से भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यस सर। अब वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो जिस तरीके से कोलाइड कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे भी आ जाएगा। यस सर। तो मतलब मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। आई क्या बात दोनों समझ जगह पे में? नहीं कर सकते ना सर? कॉमन टेंजेंट पे भी नहीं कर सकता हूं यस और सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे भी नहीं कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ऑल्दो क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस में लग रहा है तो मैं एक्स एक्सिस में कंजर्व कर सकता हूं, यस सर। वाई में नहीं कर सकता, विच आई एग्री, बट एक्स में कर सकता हूं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्स में नहीं लग रहा। यस सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो एक्स में कर सकते हैं तो सबसे पहले कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये v नॉट थी तो इधर v नॉट साइन अल्फा, वाई में नीचे v नॉट कॉस अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बाद में ये v1 से रिटर्न कर रहा है तो ऊपर कितना आएगा? V1 cos अल्फा। अल्फा। और लेफ्ट में कितना आएगा? V1 sin अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये बाद में v2 से जा रहा है, यस सर। एक्स में ही जाएगा, वाई में तो जाएगा ही नहीं, यस सर। राइट? यस सर। तो हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते बट मोमेंटम एक्स में कर सकते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं कर सकते बट एक्स में कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? हम ई की वैल्यू तो लिख ही सकते हैं ना अभी भी। यस सर। ई की वैल्यू कहाँ लिखते हैं? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेरी गुड। F external y is not zero, hence P system along y is not constant. But F external x तो जीरो है तो P system x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। क्योंकि P system x कांस्टेंट है तो इनिशियल कितना m v नॉट साइन अल्फा राइट में जा रहा है, यस सर। माइनस m v1 साइन अल्फा लेफ्ट में जा रहा है, प्लस कैपिटल M v2 क्योंकि ये राइट में जा रहा है। यस सर। इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या होगी? E की वैल्यू यस सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट माइनस v2 साइन अल्फा। क्यों? लेफ्ट। ये v2 है यस सर। तो इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या कितना का? v2 साइन अल्फा। यस सर। नीचे आ रहा है तो नेगेटिव ले लिया, यस सर। तो माइनस v2 साइन अल्फा यहाँ आ गया, यस सर। माइनस v1 क्योंकि वो v1 ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव ही रहेगा। v नॉट नीचे आ रहा था तो माइनस v नॉट माइनस जीरो इक्वल टू ई। तो ई वी नॉट किसके इक्वल आ गया? v1 प्लस v2 साइन अल्फा के इक्वल आ गया। यस सर। दो इक्वेशन, दो अननोन कर लोगे सॉल्व?
यस सर। ओके हाँ चल बच्चे माइक ऑन करो। सर हमें V1 और V0 का रेशियो निकालना है ना? यार उन्होंने क्लियरली बता नहीं रखा। V1 V0 का निकाल लो। राइट ओके सर। सिद्धार्थ बोलो। सर जस्ट बिफोर तो नॉट डिफाइन होगा ना, क्योंकि 0 आएगा। अरे जस्ट बिफोर V0 होगा, जस्ट आफ्टर V1 होगा ना, तो उसका कहना चाह रहे हो। सर जस्ट बिफोर तो V0 by 0 दोनों होगा। ऑब्जेक्ट्स का नहीं निकालना चाह रहे बच्चे, समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। ओके नेक्स्ट सर। एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराना चाह रहा हूँ सॉल्व। कौन करेगा? रेज हैंड करो, डिस्कस। प्रशांत एंड सिद्धांत दोनों माइक ऑन कर लो। सिद्धार्थ। यस सर। Yes. A particle is thrown with velocity v at an angle theta with the horizontal as shown in figure. If coefficient of restitution between the particle and the floor is e and the floor is smooth, find. ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ये सब दे रखा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड पूछा गया है। प्रशांत v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v sin थीटा आ जाएगा। सिद्धार्थ एंड प्रशांत। Yes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा आ जाएगा। करेक्ट? Yes. अब जब ये नीचे आके गिरेगा तो प्रोजेक्टाइल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट विल फॉल वर्टिकली डाउन विद द सेम स्पीड, तो v sin थीटा से नीचे आएगा एंड हॉरिजॉन्टली उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट आती है, तो v cos थीटा से राइट में जाएगा। करेक्ट? Yes. अब जब ये कोलाइड कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा ये। यस सर। Yes. तो कॉमन टेंजेंट पे बिफोर कोलिजन कितनी स्पीड है? v cos थीटा। तो कॉमन टेंजेंट पे आफ्टर कितनी होनी चाहिए? v cos थीटा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, बिकॉज अलोंग कॉमन टेंजेंट वेलोसिटी इज सेम। करेक्ट? एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी ev sin थीटा। ऐसा क्यों? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते जाना। सिद्धार्थ एंड प्रशांत, Yes. E Sir. क्या होता है? v2 minus v1 upon u1 minus u2 Yes. कॉमन नॉर्मल पे। Yes, sir. राइट? यस सर। अब कॉमन नॉर्मल पे v2 minus v1 upon u1 minus u2 है, तो E v2 तो 0 ग्राउंड है, माइनस v1 कॉमन नॉर्मल पे अपॉन u1 कॉमन नॉर्मल पे कितना था? नीचे जा रहा था, तो माइनस v sin थीटा। Yes, sir. यस सर। माइनस u2 0 Yes. ग्राउंड है। सेकंड ऑब्जेक्ट इज ग्राउंड विच इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो यहाँ से v1 कॉमन नॉर्मल कितना आ गया? EV sin theta. यस सर। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये ev sin थीटा आएगा, ये समझ में आया? Yes, sir. अब प्रशांत एंड सिद्धांत, जब ये कोलाइड करेगा ऐसे वापस, तो यस नीचे कितने से जाएगा? EV ev sin थीटा। Yes. राइट में कितने से जाएगा? v cos थीटा। यस सर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो कितने से जाएगा? e स्क्वायर v sin थीटा से जाएगा क्या? इसी फॉर्मूले में डाल दूंगा। ये Yes, sir. वैल्यू ev sin थीटा होगी तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो e स्क्वायर v sin थीटा हो जाएगा। Yes. और राइट में v cos थीटा। समझ में आई बात? Yes, sir. मतलब e का पावर बढ़ते रहेगा ना सर? बस बस बस, ठीक है। अब आगे देखना, v1 कॉमन टेंजेंट तो हमेशा मेरा 2v सॉरी v cos थीटा रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग कॉमन टेंजेंट रिमेन्स सेम।
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? Sum of time of flights of individual projectiles T1 plus T2 plus T3 and so on. Sum of time of flights of each projectile, right? Yes. T1 कितना आएगा? 2v sin 2v sin theta by theta by g. जी. जी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy by g होता है. Yes, sir. Yes sir. T2 कितना आएगा? 2ev sin theta by g, बिकॉज सेकंड वाले के लिए uy2 कितना है? ev sin theta, उससे ही जा रहा है. Yes sir. थर्ड वाले के लिए uy3 कितना है? e square v sin theta है. Yes sir. तो T3 कितना आएगा? 2 2 is square v. e square v sin theta by g. Yes, sir. तो टोटल टाइम कितना आ गया? 2v sin theta by g plus 2ev sin theta by g plus 2e square v sin theta by g. Sir. राइट? सर हाँ. सर जो डायग्राम में दिखा है वो सिर्फ 4 ही हो रहा है कि ऐसे होते जा रहा है? इनफाइनाइट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2v sin theta by g 1 plus e square and so on. सम ऑफ इनफाइनाइट gp कितना होता है? a upon 1 minus r होता है जब r 1 से छोटा है. Yes sir. 2v sin theta by g 1 upon 1 minus e. करेक्ट? Yes sir. कॉमन मल्टीप्लायर e था. आंसर आ गया 2v sin theta by g into 1 minus e. Yes sir. Yes. क्लियर है? Yes sir. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? sx टोटल कितना होगा? रेंज 1 प्लस रेंज 2 प्लस रेंज 3 एंड सो ऑन. रेंज कितना होता है बच्चे? 2ux uy by g होता है. Yes sir. Yes. तो r1 कितना आएगा? 2ux v cos theta. 1 के लिए uy कितना था? v sin theta by g. Yes, sir. रेंज 2 2ux उसका भी v cos theta था, बट उसका uy ev sin theta था बाय g. Yes sir. रेंज 3 2v cos theta e square v sin theta by g. Yes sir. तो sx टोटल क्या होगा? सब में 2v square cos theta sin theta by g तो कॉमन ही है. पहले वाले में 1 था, दूसरे में e था, तीसरे में e square था एंड सो ऑन. तो अगेन ये कितना आ जाएगा? 1 by 1 minus e. इनका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. इधर आएगा v स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकता हूँ बाय g. तो दिस इज दी रेंज या sx टोटल. आई बात समझ में? Yes, sir. इसको ऑल्टरनेटिवली एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ux इंटू टोटल टाइम. अगर मैं टोटल टाइम ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में निकाल चुका था, 2v sin थीटा बाय g इंटू 1 माइनस e. ux क्योंकि कांस्टेंट था तो uxt लिख सकते हैं, दैट इज v cos थीटा. मल्टीप्लाई कराऊंगा तो v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय. तो ये शॉर्ट ट्रिक तब काम आएगी जब आप ऑलरेडी टाइम निकाल चुके हो. अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा तो आप डायरेक्टली मेरा वाला मेथड यूज कर सकते हो. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes sir. माइक ऑफ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. सिमिलर है. क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सर वो वर्टिकली डाउन गिर रहा है या उसको रिलीज किया है हवा में तो ऑब्वियसली नीचे ही गिरेगा ना. यस सर.
सॉरी। सॉरी। Last 1 or 2 minutes.
ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? सिद्धार्थ माइक ऑन कर लो। यस सर। पार्टिकल पहले ऐसे गिरेगा h हाइट यस सर। किसी v वेलोसिटी से, रिटर्न ev से करेगा। यस सर। h1 हाइट तक ऊपर गया तो वापस h1 हाइट नीचे आएगा, डिस्टेंस पूछा है क्योंकि हमसे। यस फिर सर। रिटर्न e स्क्वायर v से करेगा, लेट्स से h2 ऊपर गया तो h2 नीचे आएगा, राइट? यस सर। तो अब मैं क्या देख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, h1 सॉरी h प्लस ट्वाइस ऑफ h1 प्लस ट्वाइस ऑफ h2 एंड सो ऑन। ट्वाइस h1 की वैल्यू, अरे ऊपर जाएगा h1 और नीचे आएगा h1। सर। h1 कितना, e स्क्वायर v बाय 2g, ये कैसे आया? ऐसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है, तो h Yes, की sir. वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। Yes, हाईएस्ट sir. पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो u स्क्वायर बाय 2a कर दूंगा, तो u स्क्वायर इज ev का स्क्वायर बाय 2a इज 2g, Yes, sir. करेक्ट सिद्धार्थ? Yes, sir. v की वैल्यू कितनी होती है, √2gh। Yes, sir. जब ये गिरता है तो फ्री फॉल यूजिंग सेम फॉर्मूला, तो Yes, v sir. √2gh है तो v स्क्वायर कितना होगा, 2gh होगा। 2gh को अगर यहाँ डालूंगा तो h1 कितना आएगा, e स्क्वायर h आ जाएगा। Yes, sir. सेम लॉजिक से h2 कितना होगा, e रेज टू पावर 4 v स्क्वायर, 2gh. Yes, sir. v आपका √2gh है, Yes, sir. तो आपका h2 कितना आएगा, e रेज टू पावर 4 h आ जाएगा। Yes, sir. b कितना है, h प्लस 2e स्क्वायर h प्लस 2e रेज टू पावर 4 h प्लस 2e रेज टू पावर 6 h, ऐसे चलता रहेगा। तो h को तो एज इट इज छोड़ दिया, 2e स्क्वायर h कॉमन लिया इधर, तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 एंड सो ऑन, राइट? Yes. Yes, sir. वही जीपी 1/1 माइनस e स्क्वायर, Yes, sir. 1/1 माइनस e स्क्वायर इंटू 2e स्क्वायर h प्लस h, एलसीएम ले लेंगे, h माइनस h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, तो h प्लस h स्क्वायर बाय 1 माइनस e स्क्वायर, h कॉमन लिया तो 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। आई बात समझ में? Yes, sir. टोटल टाइम क्या होगा, नीचे गिरने का टाइम, फिर ट्वाइस ऑफ t1 प्लस ट्वाइस ऑफ t2, नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का सेम ही होता है, Yes, sir. करेक्ट? Yes. t की वैल्यू √2h बाय g, क्योंकि h हाइट फॉल कर रहा है। Yes, sir. t1 कितना होगा, h1 हाइट फॉल कर रहा है तो √2h1 बाय g, Yes, sir. तो h1 की वैल्यू डालूंगा तो 2e स्क्वायर h बाय g, तो e √2h बाय g, Yes, sir. करेक्ट? सेम वे में t2 कितना होगा, √2h2 बाय g, ट्वाइस ऑफ e रेज टू पावर 4h बाय g, e स्क्वायर √2h बाय g। तो टाइम कितना आ गया, t की वैल्यू डाली √2h बाय g प्लस 2t1, तो ट्वाइस ऑफ e √2h बाय g प्लस 2t2, ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर 2h बाय g, करेक्ट? Yes, sir. इनमें से 2e √2h बाय g कॉमन लूंगा तो 1 प्लस e स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू 1/1 माइनस e बचेगा इसके साथ, Yes, और sir. वो √2h बाय g तो एज इट इज चल रहा है, तो √2h बाय g अब कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e, एलसीएम Yes, लूंगा तो 1 माइनस e प्लस 2e अपॉन 1 माइनस e √2h बाय g, Yes, √2h बाय g कॉमन 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। किसी Okay, बच्चे sir. को कोई डाउट, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो? यहाँ तक क्लियर है? अपडेटेड नोट्स और वो क्या कहते हैं आपका होमवर्क ग्रुप पे भेज रहा हूँ। संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर होगा 10 से 12 साढ़े 12 के बीच में, उसमें मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? और वेरिएबल मास का एक कॉन्सेप्ट बाकी है वो पढ़ा दूंगा। मैंने होमवर्क और नोट्स ग्रुप पे डाल दिए, रिकॉर्डिंग जैसे ही अपलोड होगी वो भी भेज दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आई रिपीट, संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर होगा।